Good morning, students. Myself Deepak Verma, Assistant Professor ABST Government College निम्बाहेड़ा। अब तक के अपन वीडियो में देख चुके हैं लगभग कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में किस तरह से बेस होता है, थ्योरेटिकल कंपनी क्या होती है, शेयर्स क्या होते हैं। तो आज से अपना प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा। तो इश्यू ऑफ शेयर की बात की जाए तो इश्यू ऑफ शेयर्स तो ये देखिए आपको दे रखा है। When a public limited company get the certificate of incorporation, it issue a prospectus of a statement in lieu of prospectus inviting public to subscribe to the share capital of the companies. थ्योरेटिकल में यह है कि जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट तैयार बन जाता है तो उसके बाद वो क्या कर सकती है, जनता से आवेदन मांग सकती है। That is a invitation is made through a document called prospectus. इसी को अपन prospectus कहते हैं। The prospectus is the simply to invite to an offer but is not an offer. If one is interested application which is prescribed and printed by the company is filled, signed and signed to the companies along with the prescribed application amount. These applications are considered by the board of directors who take the decisions as to their acceptance or rejections within a reasonable time. If the share applications are accepted by the company, then shares are allotted and thereby there arises a contract between the company and the applicants. That is allotment result in a binding contract between the company and the prospective shareholders. The allotment must be communicated to the person making the application so that it is a legally complete. From the accounting point of view, the following may be noted. तो ये अपने को ये बता रहे हैं कि जब कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है तो उसके शर्तों के अधीन अंडर कोई भी व्यक्ति जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाहे, शेयर खरीदना चाहे, आवेदन भर के दे देगा, ड्यूली साइन करके जो भी अमाउंट चाहिए सारी फॉर्मेलिटीज पूरा करके। अब कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये डिसाइड करना है कि वो उसको एक्सेप्ट करते या रिजेक्ट करते। जैसे कई बार उन्होंने डिसाइड किया कि अगर जिनके एप्लीकेशन जिन्होंने 5 से कम के लिए आवेदन किया उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए। कई बार ऐसी स्थिति होती है कि ओवर सब्सक्रिप्शन केस आ जाता है, इशू किए 1000 और मान लो 1500 आ गए और कंपनी कहते हैं नहीं हम प्रोराटा नहीं करेंगे, तो 500 जिनको लौटा जाएगा उन्हें रिजेक्ट करेंगे। तो रिजेक्ट के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो ये फिर उसके बाद अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं तो इसका मतलब फिर वो अलॉटमेंट के लिए कंपनी के बीच में बाउंड देता है कि अलॉटमेंट करना ही पड़ेगा, लेकिन सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी होनी चाहिए। जैसे कंपनी एक्ट में कहते हैं 90% सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, तो उसके बाद की बात है। तो ये कुछ पॉइंट भी नोटेड करने लायक है अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। एवरी प्रोस्पेक्टस मस्ट मेंशन द नंबर ऑफ द शेयर इशूड ऑफर्ड टू द पब्लिक, द एक्सचेंज एप्लीकेशन रिसीव्ड ओवर द इशू शेयर्स आर टू बी रिजेक्टेड। देन वही बात आ गई जो मैंने पहले बताई। सेकेंड है prospectus must mention the minimum subscriptions. No allotment shall be made unless the amount stated is the prospectus as minimum subscription has been subscribed and the sum payable of applications for the amount so stated has been paid in cash and received by the company. The minimum amount of the share capital is determines the cover was the purchase price of any property purchased or the purchase to be purchased. Preliminary expenses, money borrowed for the foregoing matters and for working. If this minimum capital is not applied for, share cannot be allotted. As per the SEBI guidelines, the minimum application money to be paid shall not be less than 25% on the share issue price. कि एप्लीकेशन पे जो पैसा मांगोगे वो उसके 25% से कम नहीं होना चाहिए जो उसकी फेस वैल्यू से। मिनिमम एप्लीकेशन money as per the section 69(3) of the Companies Act is 5% of the nominal value of the shares and the 25% of the issue price of the cannot be less than the 5% of the nominal value of the shares. यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो एप्लीकेशन पे पैसा मांगेंगे वो उसकी फेस वैल्यू के 25% से कम नहीं होगा और किसी भी सूरत में इश्यू प्राइस इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 100 की चीज़ जरूरी नहीं है 100 में बेचा जाए, वो प्रीमियम पे होगा तो 5000 100 का चीज़ 5000 में बेची 10,000 में बेची तो वो सारी चीज़ें हो सकती है, तो 5% से कम नहीं होगा। हालांकि अपने को एक थ्योरेटिकल मैटर है, प्रैक्टिकल में ऐसा नहीं होगा। जैसा क्वेश्चन कहता है सपोज XYZ लिमिटेड इशूड कैपिटल 1000 एट द रेट ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट 120 रुपीज़, नाउ एप्लीकेशन कॉल्ड ऑन एप्लीकेशन 50 रुपीज़, तो मान लेना है। अपने को नियम इतना देखने की जरूरत नहीं है उस समय, एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है। ईच एप्लीकेशन फॉर शेयर मस्ट बी
accompanied by the prescribed application money. The application money must not be less than 5% of the nominal value of the each shares. हो चुका है ये. All application money must be kept intact in a scheduled bank and they should not be used unless a certificate of the commencement of the business from the registrars has been obtained. जो भी पैसा आएगा वो एक कंपनी के बैंक अकाउंट में रहेगा, इसके रिगार्डिंग जो ओपन होगा, और उसको तब तक यूज़ नहीं कर सकता जब तक कंपनी का रजिस्ट्रार आपको कंपनी बिजनेस स्टार्ट करने का प्रमाण पत्र नहीं दे देवे. द डायरेक्ट ये बता दूं मैं, प्राइवेट कंपनी को ऐसा किसी भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती. क्यों नहीं होती? क्योंकि प्राइवेट कंपनी जनता के बीच में शेयर इशू कर ही नहीं सकती, रेस्ट्रिक्शन होता है उनके ऊपर. उसके बाद होता है द डायरेक्टर्स मेक द अलॉट ऑफ शेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ द एप्लीकेशन. द डायरेक्टर्स रिजर्व्स the directors reserves the right to allot less number of the shares applied for to reject an application at their discretions. On allotment, the allottee has to pay the part of the amount of the face value of the shares called allotment money. After the receipt of the allotment money, the company issue share certificate. ऐसा तभी होगा जब कंपनी ने शेयर इंस्टॉलमेंट पर इशू किए होंगे. यदि उसने लमसम मेथड किया है तो ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं कि अलॉटमेंट का पैसा प्राप्त होगा, क्योंकि जब लमसम मेथड होता है तो सारा का सारा पैसा एक साथ मांग लिया जाता है. तो वो स्थिति यहाँ पर नहीं होगी. प्रैक्टिकल में भी अपन देखेंगे. द बैलेंस ड्यू ऑन शेयर में बी कॉल्ड बाय द कंपनी इन द इंस्टॉलमेंट. ईच सच इंस्टॉलमेंट इज द कॉल्ड ए कॉल. अलॉटमेंट भी एक कॉल है, लेकिन उसको अलॉटमेंट नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि उसके बाद ही ये अलॉटमेंट कॉल करने का मतलब ये है कि कंपनी शेयर फिजिकल बेस पे देने के लिए तैयार है. यहाँ पे फिजिकल बेस के लिए मैं कहता हूँ इलेक्ट्रॉनिक मोड पे भी देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि आजकल डीमैट अकाउंट के जरिए होता है तो फिजिकल फॉर्म में तो आती नहीं है, सिक्योरिटीज़ जो भी होती है, तो वहाँ तैयार है. आपने एप्लीकेशन दिया तब तक आप शेयर लेने के राइट्स नहीं हो अगर इंस्टॉलमेंट की बात की जाए तो. लेकिन जब आपसे अलॉटमेंट का मनी मांग ली जाएगी, इसका मतलब कंपनी तैयार है. जैसे आप अलॉटमेंट ही पे करोगे तो कंपनी आपको शेयर फिजिकल फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में देने के लिए तैयार हो जाएगी. The balance of due shares is the call by the company is the installment. Each of the installment is a call हो चुका है, and the amount payable is known as the call money. फिर जितनी कॉल होगी अलॉटमेंट के बाद कोई सब नाम नहीं, सभी मांग है, तो कौन सी मांग होगी? फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, जैसे भी हो. हाँ, लेकिन एक बात है, यदि वो आखिरी है तो उसके आगे फाइनल जरूर लिखा होगा. जैसे मान लो अलॉटमेंट के बाद एक ही मांग मांगी और वही फाइनल है, तो फर्स्ट एंड फाइनल. अलॉटमेंट के बाद हमने 2 कॉल की, तो पहली फर्स्ट कॉल और सेकंड एंड फाइनल कॉल. थर्ड की होगी तो शेयर फर्स्ट कॉल, शेयर सेकंड कॉल, और थर्ड के साथ हमें लिखना पड़ेगा शेयर थर्ड एंड फाइनल कॉल. ये शो करता है कि इसके बाद कोई भी कॉल पेंडिंग नहीं होगी. ईच सच इंस्टॉलमेंट इज कॉल्ड हो गया था ये. बिटवीन 2 कॉल्स देयर मस्ट बी ए गैप ऑफ द 1 मंथ. 2 कॉल के बीच में एक महीने का डिफरेंस रहना जरूरी है. शेयर एप्लीकेशन, शेयर कैपिटल, सस्पेंस अकाउंट. एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन द शेयर्स इज ट्रांसफर शेयर कैपिटल एंड अलॉटमेंट of shares, but if the balance sheets of the company is to be prepared, तो ये चीज़ें हो चुकी है. बैलेंस शीट को अपन एक बार बाद में देखेंगे, या आफ्टर छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं है. बुक बाइंडिंग, बुक बिल्डिंग वगैरह, या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस, इसके बारे में मैं बता चुका हूँ. एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान भी नहीं है. एक तरह से अपने एम्प्लॉय को शेयर कंपनी के अंदर प्रॉफिट शेयरिंग में पार्टिसिपेशन का एक तरीका है, ताकि वो एक अच्छे से ढंग से काम करे और मोटिवेट होकर कर सके. तो ये स्टॉक होता है जो अपने एक एम्प्लॉय को रोकने के लिए, लेबर टर्नओवर रेट रोकने के लिए रखती है. जैसे मान लो कोई यहाँ पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं यहीं रहे लंबे समय तक, क्योंकि उनको अपॉइंट करने के लिए स्टाफिंग की सारी प्रोसेस होती है. रिक्रूटमेंट के लिए रिटर्न एग्जाम है तो वो इंटरव्यू होता है, और बहुत सारी चीज़ें ट्रेनिंग वेनिंग खर्चे करने पड़ते हैं. तो हम नहीं चाहेंगे हमारा छोड़ के जाने से नया लेने के लिए और उसे सिखाने के लिए वहाँ तक पहुँचने के लिए काफ़ी मेहनत और काफ़ी पैसा बर्बाद होगा. तो उस चीज़ से बचने के लिए कंपनी कहती है कि नहीं, हमारे एम्प्लॉय यहीं रुके. तो ये एक तरीका है उसका, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, जिसमें ये टर्म रखती है कि आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर्स, जितना भी वो रख सकती है पीरियड्स. वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं जिसको, आगे इसके चैप्टर में जब डिटेल में बताऊंगा, तो उसके बेस पे होती है एंट्रीज. तो ये भी डिस्काउंट पर ही होते हैं एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि उनको रोकने के लिए हम बताएंगे कि आज जो शेयर 100 रुपये का है, हम तुम्हें 60 रुपये देंगे और मार्केट वैल्यू उसकी 5000 है. तो कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहेगा कि, लेकिन 5 साल बाद भी लेंगे उन्हीं, वही लेने के लिए वेस्टिंग पीरियड 3 ईयर्स 5 ईयर्स की, मान लो 5 साल बाद भी लेंगे, तो वही लेने के लिए तैयार होगा जो 5 साल मेरी कंपनी में काम कर चुका है, जो मेरा एम्प्लॉय. हर नए एम्प्लॉय को नहीं है. तो इसका मतलब कंपनी 5 साल तक जो काम कर रहे हैं या जो भी कर रहे हैं वो अच्छे से काम करेंगे,
ताकि 5 साल बाद मुझे शेयर 60 रुपये मिल जाए। आज जिसकी वैल्यू 1000 है, मान लो अच्छे से काम किया, उसकी ग्रोथ बढ़ी, कंपनी गुडविल बढ़ी, तो शेयर वैल्यू भी बढ़ेगी, तो 10,000 होगी। और जो ले चुका होगा वो भी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा कि मेरे पास शेयर है उसकी वैल्यू डाउन हो। तो ये चीज़ें इस पर डिटेल पे नहीं करूँगा मैं। हालांकि जब आपको मैंने स्वेट इक्विटी शेयर पढ़ाया था उसके बारे में डिटेल में समझाया था थोड़ा सा, इसको भी मैंने लिया था थोड़ा, क्या काफ़ी डिटेल में बताया होगा। तो जब आएगा इसका प्रैक्टिकल तब उसमें और अच्छे से देख लेंगे अपन। एक इश्यू ऑफ डिफरेंट शेयर से डिफरेंट वैल्यूज़। तो शेयर 3 तरह से इश्यू होते हैं एट पार। एट पार का मतलब फेस वैल्यू पर इश्यू किया जाएगा कि अगर कोई शेयर 10 रुपये का है तो 10 रुपये पर ही होगा, ना 9 में ना 11 में। एट प्रीमियम, जो उसकी फेस वैल्यू, शेयर की फेस वैल्यू से जो भी एक्सेस लिया जाएगा वो प्रीमियम अमाउंट कहलाता है। तो वही कंपनी प्रीमियम पे इशू कर सकती है जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होगी, ये मार्केट पे कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांगली शो करता है। एट डिस्काउंट थ्योरेटिकल है, जब कंपनी फेस वैल्यू से कम पर बेचती है तो वो डिस्काउंट कहलाता है। जैसे अगर 10 के शेयर 9 में किए तो डिस्काउंट पर शेयर इशूड एट डिस्काउंट होगा। लेकिन एज पर कंपनी एक्ट 2013 वर्तमान में कोई भी कंपनी अपने शेयर को डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन और स्वेट इक्विटी शेयर के लिए पर यह नियम लागू नहीं होगा। इसमें मैं आपको अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ पहले वाले। तो ये चीज़ें थी। तो अब थ्योरेटिकल टर्म्स अकाउंटिंग प्रैक्टिकल स्टार्ट करें, उसके पहले आज के लिए इतना ही है। अपने नेक्स्ट वीडियो में हम इसको बिल्कुल प्रैक्टिकल ही लेंगे, और ये प्रैक्टिकल से रिगार्डिंग थ्योरी थी। इसके लिए वीडियो ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Thank you very much.